हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जावा में जो इंस्टेंस क्लासरूम होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की थी ओओपी के बारे में। आज हम और उसमें आगे बात करेंगे। So an instance of a class is another word for an actual object. Class is an abstract representation of an object, whereas an instance is its concrete representation. In fact, the terms instance and object are often used interchangeably in OOP language. Means OOP language के अंदर जो आपके objects होते हैं वो change नहीं होते, ठीक है। So each instance of a class can hold different values for its attributes and in variables declared in a class. Means जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि क्लास क्या करता है कि डिफरेंट जो भी वैल्यू होती है उसको होल्ड करता है, ठीक है। Such variables are referred to as instance variables. Instance variables are created at the time of creating an object and stay throughout the life of the object. Instance variables define the attributes of an object. The class defines the kind of attribute. Each instance stores its own value for that attribute. To define an object's behavior, we create methods. In Java, methods can be defined inside a class only. Means जो बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट का उसके अंदर हम मेथड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जावा के अंदर क्या होता है, जो मेथड होती है वो क्लास के अंदर ही डिफाइन होती है, ठीक है। सो दिस मेथड्स कैन बी इन्वॉल्व यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस और मॉडिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल्स. Such methods are known as instance methods. Instance methods are used to define behavior of an object. Invoking a method is to ask the object to perform some task. In code 8.1, in code listing 8.1, we have defined a class named room with instance variable length, width, height and windows. So हमने जो क्लास लिया था रूम नाम का, ठीक है, उसके अंदर हमने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए थे लेंथ, विथ, हाइट एंड विंडोज। एंड हमने मेथड यूज़ की थी इंस्टेंस मेथड, उसमें था सेट एट्रीब्यूट डिस्प्ले एंड एरिया। सो उसको हम समराइज करते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद द न्यू कीवर्ड। मीन्स ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो किससे कर सकते हो, न्यू कीवर्ड से। The new keyword returns a reference to an object that represents an instance of the class. All instances of class are allocated memory in data structure called heap, and each object instance has its own set of data. Then after accessing instance variable and calling instance method, मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक्सेस करेंगे एंड इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे। तो कैसे करते वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड इंस्टेंस मेथड्स आर एक्सेस बाया ऑब्जेक्ट्स। मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड होती है वो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा उसको एक्सेस किया जाता है। दे कैन बी रिफर बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड, जैसे हम ले रहे थे r1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वी कैन रिफर टू लेंथ ऑफ रूम r1 यूजिंग r1। सो हम यहाँ पे रूम की जो लेंथ है उसको फाइंड करेंगे, उसको रिफ़र करेंगे और उसका नाम दे देंगे r1। सो r1 लेंथ इन अ प्रोग्राम एंड इन्वोक मेथड r1 डॉट डिस्प्ले that display attribute values of r1 as can be seen in code listing 8.1. Note that her dot here dot is an operator and associativity of dot operator is from left to right. Means यहाँ पे associativity क्या होगी, जो dot हम ले रहे हैं उसकी left to right. So remember that data should be protected from such direct access from anywhere in the program. Such protection is possible with the use of access modifiers that we will see later. When the instance variables are referred within the method of the same class, there is no need to use dot.
operator. For example, in code listing 8.1 in method display, instance variables are accessed without using dot operator. मीन्स डिस्प्ले जो मेथड है उसके अंदर जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ किए तो उसको हम विदाउट डॉट ऑपरेटर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज मेथड इज इन्वॉक्ड यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल R1 एंड thus referred instance variable are considered to be of the corresponding object stored at R1. As studied, when we only declare an object using class, object is not created. मीन्स जब हम क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते उसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं. ठीक है. सो इन दिस केस रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट रिफर टू एनी ऑब्जेक्ट एंड इट्स इनिशियल वैल्यू इज नल बाय डिफॉल्ट. यूज ऑफ सच नल रेफरेंस और नल पॉइंटर इज इलीगल एंड मे रेज एन एक्सेप्शन यानी वहाँ पे एरर दिखा सकता है. सो रिफरिंग इंस्टेंस वेरिएबल और इन्वोकिंग मेथड विथ नल रेफरेंस विल गिव एन एरर. ट्राई फॉलोइंग कोड. मीन्स आपको ये जो कोड है वो फॉलो करना है जब आप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करो तब, यानी उसको जब नल डिस्प्ले करना है तब. सो रूम स्पेस R1 वो क्या करेगा, नल वैल्यू असाइन टू रेफरेंस वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट. बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू नल होगी. नल मीन्स 0. देन आफ्टर R1 डॉट लेंथ उसको प्रिंट करवाएगा, लेकिन यहाँ पे वो इलीगल है. देन आफ्टर आप R1 डॉट डिस्प्ले ले रहे हो वो भी वहाँ पे इलीगल है. ठीक है. सो देन आफ्टर हम बात करेंगे क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड. As discussed earlier, when an object is created using new keyword, memory is allocated from heap area to store the value of its attribute. Means जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, ठीक है. सो जब हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते उस टाइम पे हीप में से वैल्यू अलोकेट हो जाती है जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको. Thus every object has its own instance variables occupying different space in memory. Now suppose we want to have a total number of windows of all room objects created so far. To store this value, it requires only one variable per class. It is meaningless to keep this variable as an attribute of each object. Actually, it is not an attribute of an object, it is an attribute of a class. Thus, when there is a need to have some variable that is shared by all object instances of the same class, the variable should be allocated the memory only once per class. Means जो वेरिएबल होता है, ठीक है, उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो पर क्लास ओनली वन टाइम ही वहाँ पे एलोकेट होती है. ठीक है. इट मीन्स दैट वेरिएबल बिलोंग्स टू अ क्लास एंड नॉट टू एन ऑब्जेक्ट. मीन्स वेरिएबल जो है वो क्लास से बिलोंग करता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. Such variable can be declared within a class using static keyword before data type, and these static variables are called class variable. Values of instance variables are stored in instance, whereas values of class variables are stored in class itself. Means instance variable की जो values होती है वो instance में store होती है. ठीक है. जो ऑब्जेक्ट की होती है वो उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, लेकिन क्लास वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो क्लास के अंदर इटसेल्फ मीन्स उसके अंदर ही सेव होती है. लेट अस डिक्लेयर क्लास वेरिएबल टोटल विंडोज बाय एडिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द क्लास विथ इंस्टेंस वेरिएबल. मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ करके हम कोडिंग ऐसे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो. स्टैटिक इंटीजर टोटल विंडोज. The static variables can be accessed without creating an instance of a class. For example, if we try to display the value of total windows without creating any object of the class room, it will display 0. Just like class variable, class method can be defined using static keyword in front of the method definition. Try following method in room class to display total windows. Static void display total windows in bracket system.out.println and then after total windows जो है वहाँ पे आपको डिस्प्ले करवानी है. Then after class variables and class methods can be accessed outside the class using. अगर आपको क्लास के बाहर
क्लास वेरिएबल क्लास मेथड को यूज़ करना है तो ऐसे क्लास नेम डॉट क्लास वेरिएबल और मेथड नेम को यूज़ करके यूज़ करना होगा। सो फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो रूम डॉट टोटल विंडोज़ कॉमा अदरवाइज रूम डॉट डिस्प्ले टोटल विंडोज, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो नोट दैट क्लास मेंबर्स कैन बी रिफर्ड विदाउट क्लास नेम बाय द मेथड्स ऑफ द सेम क्लास एज शोन इन कोड लिस्टिंग फिगर 8.3। ये 8.3 फिगर है, ठीक है। तो उसमें क्लास वेरिएबल के अंदर टोटल विंडोज़ यूज़ किया है जो हमने यहाँ पे बात की, ठीक है। सो वो पूरा प्रोग्राम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।